Hello friends, welcome to 21st session of Chemistry of Carbon and its Compounds. In this session we are starting discussion about soaps and detergents. We are going to discuss this soaps and detergents part in 3 sessions. In today's session we will discuss what are detergents and their types and what are soaps, how they are synthesized and all. And in second we will see cleansing action of soaps, how soaps have cleansing effect over dirt and greasy material. And in last session we will discuss about what is soft and hard water and what are detergents. So we will begin with the discussion of detergents. So what are detergents? Any substance which have cleansing effect in water. Any substance which have cleansing action in water are called as detergents. And detergents are of two types depending on their touch. Those which are having soapy touch are called as soaps, and those which are having non-soapy touch are called as synthetic detergents or simply detergents. Synthetic detergents or simply detergents. What are soaps? Soaps are sodium or potassium salts of higher fatty acids. एक एग्जाम्पल नीचे लिखा है मैंने. फॉर एग्जाम्पल दिस इज सोडियम palmitate. The name of this soap is sodium palmitate. The molecular formula of sodium palmitate is C15H31COONA. This is long structure and this is bond angle structure, line angle structure. Thanks to Kekulé sir, which enabled us to draw such kind of structures for such huge molecules. So if you observe this has a long hydrocarbon chain and end में polar part है, which is the sodium ionic part. So this is the basic definition about soaps. Soaps are nothing but sodium or potassium salts of higher fatty acids. तो इसको कैसे बनाते हैं? वेजिटेबल ऑयल या फैट्स को अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके हमें सोप्स मिलते हैं. इस रिएक्शन को कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. नाउ वी विल सी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. तो जो भी सब्सटेंस है जिसमें क्लींसिंग पावर है, जो कपड़े का मैल निकाल सकता है, वो होता है डिटर्जेंट. और डिटर्जेंट के दो टाइप है. एक तो वो सोप रहेगा या फिर नॉन सोपी रहेगा. नॉन सोपी रहेगा तो उसको हम सिंपली डिटर्जेंट कहते हैं या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते हैं. डिटर्जेंट थोड़ा सोप से स्ट्रांग होता है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो पर्यावरण को दूषित करता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं रहता है. वेयर सोप्स आर कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल. अभी सोप्स कैसे बनते हैं? ऑयल या फैट क्या होता है? एक ईस्टर होता है. और वेजिटेबल ऑयल से जब हम सोप बनाते हैं तो वेजिटेबल ऑयल में मेन कंटेंट क्या होता है? वो एक ईस्टर होता है, ग्लिसराइड. ऐसा उसका स्ट्रक्चर रहता है. OCO H31OCO. अभी अगर आप इस ग्लिसराइड मॉलिक्यूल को देखेंगे तो ये क्या है? ईस्टर, RCOOR. ये ग्लाइकॉल है और ये पामिटिक एसिड का, दोनों को मिला के हम इसे सिंथेसाइज भी कर सकते हैं. बट वी नीड नॉट हैव टू सिंथेसाइज दिस. व्हाई? बिकॉज इट इज अवेलेबल नेचुरली. जो भी हमारे एनिमल फैट्स है और वेजिटेबल ऑयल है, इसमें ये ईस्टर मेन कंटेंट रहता है. तो बस इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर देना है हमें. तो इसमें का हमें जो अल्कोहल पार्ट है वो वापस मिल जाता है ग्लाइकॉल
CH2OH, CHOH, CH2OH, और सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड हमें मिल जाता है C15H31COONA। इसकी भी मैं रिएक्शन दिखा देता हूं आपको। इसको भी अगर आपको सिंथेसाइज करना है तो कर सकते हैं। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन कैसे होती है? ग्लाइकॉल CH2OH, CHOH, CH2OH, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ पामेटिक एसिड ले लेते हैं हम C15H31COOH, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया इसमें और हीट कर दिया तो हमें ये वाला ईस्टर मिल जाएगा। गलत दिशा में रिएक्शन चली गई। इधर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में थोड़ा सा अगर हीट कर देंगे तो हमें ये मिल सकता है, लेकिन हमें ये सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज दीज आर अवेलेबल नेचुरली। This reaction is called as esterification reaction. This is esterification reaction and this is saponification reaction. Saponification reaction क्या होती है? ये alkaline hydrolysis of ester, alkaline hydrolysis of animal fats or oils to give soap is called as saponification reaction. Simply याद रखिए कि सोप बनाने की जो रिएक्शन है वो है saponification reaction. सोप बनाने की जो रिएक्शन है वो है saponification reaction. saponification reaction में क्या होता है? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होता है और ये ईस्टर हम कौन सा यूज करते हैं? वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट्स में जो ये ईस्टर रहता है ग्लिसराइड, इसको हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं जिसमें हमें ग्लाइकॉल बैक मिल जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिटर्जेंट्स एंड सोप्स एंड देयर सिंथेसिस। अभी इसके स्ट्रक्चर की तरफ आप ध्यान दीजिए। ये इतना लंबा स्ट्रक्चर है। आप एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, अगर आप CH3COOH देखेंगे या HCOOH देखेंगे तो ये जो है ये वाटर में सोल्यूबल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी चेन बढ़ती जाती है इसकी सोल्यूबिलिटी कम कम हो जाती है। आफ्टर 5-6 कार्बन एटम इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल, बहुत ही कम सोल्यूबिलिटी रहती है। और चेन को हम जितनी लंबी करते जाते हैं उतनी सोल्यूबिलिटी उसकी कम 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 होती जाती है। और अगर इतना लंबा एसिड लेंगे तो ये तो वाटर में सोल्यूबल नहीं रहता है। और इसका सोडियम सॉल्ट भी वैसा ही है, सोल्यूबिलिटी लॉन्ग चेन रहने से कम कम होते जाती है। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें इतनी लंबी चेन है तो दिस पार्ट इज पोलर पार्ट विच विल बी सोल्यूबल इन वाटर, बट दिस हाइड्रोकार्बन विच हैज वेरी लॉन्ग चेन, दिस विल एक्ट लाइक अल्केन ओनली, and alkanes are not soluble in water, alkanes are soluble in organic solvents. इसमें पोलैरिटी ही नहीं है। तो ये जो एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में ड्यूअल नेचर आ जाता है। इसका आधा पार्ट जो है ये वाटर में सोल्यूबल रहता है और इसका आधा नहीं, थोड़ा सा एंड टर्मिनल पार्ट जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है और ये लॉन्ग चेन जो है टेल उसकी वो वाटर में सोल्यूबल नहीं रहती है। दिस makes us enable for cleansing action of soap. यही हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, एक एंड जो है वो वाटर लविंग है और एक एंड जो है वो वाटर हीटिंग है, ये कैसे क्लींसिंग एक्शन करता है। और हम देखते हैं जो पानी की ओर खींचा जाता है, वाटर लवर है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। और जो वाटर हीटिंग रहता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। फिलिक मीन्स लव, अट्रैक्शन, और हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के प्रति लव, वाटर के प्रति अट्रैक्शन जिसको रहता है वो हाइड्रोफिलिक है। और वाटर के प्रति एवर्जन, डिसलाइक, हेट, फोबिया यानी क्या होता है? उस चीज की हमें घृणा है। तो ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस जो रहते हैं पानी के प्रति, इनको घृणा होती है। ये जो लंबी टेल है
ये पानी के प्रति इसको घृणा है। ये टेल जो लंबी टेल है ये हाइड्रोफोबिक है और इसको अट्रैक्शन किसका है, ऑयल्स और ग्रीस का है, ये हाइड्रोकार्बन है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो इसे कहते हैं लियोफिलिक टेल। लियोफिलिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड। ये जो सर्कुलर पार्ट, ये पोलर पार्ट है, इसे कहते हैं हेड। ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है और ये जो टेल है वो लियोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है। So friends, this was all about brief about soaps, their synthesis and their structure. In the next session, we will discuss how micelles are formed and the cleansing action of soaps. That will be the second session of our soap and detergents topic. In this session, we have covered what are soaps and their types and their synthesis and their structural behavior. So what are detergents? Detergents are any substance which are having cleansing action in water are called as detergents. Detergents are of two types depending on their soapy or non-soapy touch. The detergents which are having soapy touch are called as soaps, and which are not having soapy touch are called as synthetic detergents or simply detergents. Soaps are sodium or potassium salts of higher long chain fatty acids. एंड उसका सिंथेसिस जिस रिएक्शन से होता है उस रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये जो ग्लिसराइड मॉलिक्यूल रहता है जो कि नेचुरली वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स में प्रेजेंट रहता है, इसका हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड हमें मिल जाता है। हम इसको सिंथेसाइज करना भी अगर चाहे तो कर सकते हैं। वो रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। एसिड प्लस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO को हीट कर दिया, हमें ईस्टर मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन हाउ cleansing effect of soap occurs. Thank you friends.